So, hello everybody. Today, we shall be starting exercise 27b, isn't it? We shall be starting exercise 27b. What is special in exercise 20b? Let's first recall exercise 27a. Exercise 27a, where we had studied about quadrilateral. Now, what did we learn in this quadrilateral? कि भाई कोई भी चार टांग वाला, isn't it? चार टांग वाला 1 2 3 and 4. Okay, 1 2 3 4. 4 sides है, and the sum of the angle was equal to 360 degree. मतलब A, B, C और D को मिला के इक्वल टू 360 डिग्री हमने पढ़ा था. इसी का एक भाई है, isn't it? And the name of the brother is trapezium. Trapezium, Z-I-U-M. Now, what is this trapezium? Here, in trapezium is also a quadrilateral. It is also a quadrilateral, but here two sides are parallel. Means two opposite sides are parallel. So when two opposite sides are parallel, these two opposite sides are parallel. So this is your trapezium. This is also a quadrilateral क्योंकि चार टांग है, 1 2 3 4. 4 legs are there. Therefore, here A B C D is a trapezium, and in this trapezium, what is very important is that these two lines are parallel. So when these two lines are parallel, तो एक काम करो बेटा, जरा सा इसको प्रोड्यूस जरा सा करे तो produce, when you will produce these two lines, what you will learn that हम लोग parallel lines में पढ़े थे कि when a transversal cuts two parallel line, then the sum of these co-interior angle, एक मिनट, co-interior angles इसे बोलते हैं co-interior angles. तो ये वाला co-interior angle A और B मिला के एंगल A और एंगल B मिला के is equal to 180 degree. So sum of the co-interior angle will be equal to 180 degree. कब? When the lines will be parallel. उसी तरह here also these two are co-interior angles. These two are co-interior angles. So when these two are co-interior angle, तो इसका नाम D है, इसका नाम C. So D plus C, angle D plus angle C will be equal to 180 degree. तो जहाँ जहाँ trapezium देखेंगे तो trapezium देखने पर the sum of co-interior angles को 180 कर देंगे. अच्छा, एक बात और, in this trapezium one very important thing is you will be given isosceles trapezium, isn't isosceles trapezium? मतलब ये दोनों जो नन पैरेलल साइड है, ये वाला, ये दोनों नन पैरेलल साइड्स जो है आपका इक्वल रहेगा, इक्वल. तो जब नन पैरेलल साइड्स विल बी इक्वल, अच्छा, दीज आर द पैरेलल साइड्स और ये दोनों नन पैरेलल साइड्स. सो व्हेन नन पैरेलल साइड्स are equal, then in that case these angles will be equal. ये वाला एंगल बराबर होगा, जिसको कहते हैं बेस एंगल्स विल बी इक्वल. तो बेस एंगल ऊपर में भी and the base angles will be here also. So here these two angles will be equal and these two angles will be equal. This means अगर ये 120 तो ये वाला भी 120 होगा. ठीक है, come on. Now we shall start our trapezium, means start solving the exercise.
तो 1 में क्या कर रहा है, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेपीजियम। जब भी हम लोग वर्कआउट करेंगे तो इन दैट केस यू शुड ड्रॉ अ फिगर because that will make your work easier. So in a trapezium देख सकते हैं these two sides are parallel, ABCD angle A equal to 78 degree. So ABCD यहाँ पे एंगल A का वैल्यू इज गिवन 78 डिग्री एंड एंगल C का वैल्यू इज गिवन 120 डिग्री। तो कोई बात नहीं है भाई, ये दोनों में कोई जान पहचान नहीं है, ना ही कोई रिलेशन है। रिलेशन किस में है, रिलेशन इसमें और इसमें है एंड 78 और एंगल डी में। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल डी एंड एंगल बी, ये दोनों निकालना है। फाइंड एंगल डी एंड एंगल बी। तो एंगल डी प्लस एंगल ए, इजंट इट? एक काम करते हैं, बी वाला निकालते हैं पहले। एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल। याद आ गया? को इंटीरियर एंगल्स। सो व्हेन the sum of these two equal to 180 degree, C का value is already 120 degree, angle B is not given and you are asked to find out the value of B. तो यार angle B equal to 180 degree minus 120 is equal to कितना बाबू? 60 डिग्री। Similarly D प्लस एंगल A, एंगल इसको लाल से करते हैं, एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू विल बी आस्क्ड टू गिव अ रीजन, तो आप रीजन लिख दीजिएगा। को इंटीरियर एंगल, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। D का वैल्यू इज नॉट गिवन, सो एंगल D प्लस एंगल A, एंगल A कितना? 78 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू हो गया बाबू 180 माइनस 78। सो 180 माइनस 78 इज इक्वल टू 102 डिग्री। काम खत्म। ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरा सम में, दैट इज नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। इन क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव गिवन यू अ ट्रेपीजियम। आ जा बाबू, थोड़ा सा ऊपर आ जा, वेरी गुड। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव गिवन यू अ ट्रेपीजियम। फिर से एक बार बोल दें, ट्रेपीजियम मीन्स टू साइड्स विल बी पैरेलल। टू साइड्स विल बी, टू साइड्स मतलब टू अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स विल बी नॉन पैरेलल। तो ये दोनों का नाम है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, कमन। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आप लोग शायद बुक खोले हुए होंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं भी खोले हैं तो कोई बात नहीं है। दे हैव गिवन यू अ ट्रेपीजियम ABCD, इन द साइड AB इज पैरेलल टू DC। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये पैरेलल का साइन भी डालना है यहाँ पे। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC। एंगल A का वैल्यू दे हैव गिवन इट एज x एंड एंगल D इक्वल टू 3x माइनस 20। ठीक है, 3x माइनस 20 ये वाला वैल्यू है एंगल D का। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अरे भैया, फिर वही बात, वी नो दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, और ये वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब वही लाइन जो लाइन विच कट्स द पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, सो डी ए इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हुआ ना, ये डी और ए। सो एंगल, सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू राइट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलेगा काहे बाबू? तो सिंपल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आ जाइए, लेट अस पुट द वैल्यू। ए का वैल्यू x, डी का वैल्यू 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 3x 4x, 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4x विल बी इक्वल टू कितना? 180
प्लस 20 कितना हो गया 4x प्लस 20 180 प्लस 20 पूरा पूरी 200 तो पूरा पूरी 200 तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी 200 बाई 4 मतलब 50 हियर यू कैन राइट 50 डिग्री क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू भी है x का वैल्यू भी डिग्री में। अगर पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ d पूछेगा ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d तो वैल्यू ऑफ d विल बी हाउ मच सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3x माइनस 20 आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो एंगल d का वैल्यू क्या होगा एंगल d विल बी इक्वल टू 180 माइनस ए एंगल d इज इक्वल टू 180 माइनस ए डायरेक्ट जब ये दोनों मिला के 180 हो रहा है एंड द वैल्यू ऑफ x इज 50 सो द वैल्यू ऑफ d विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 और ये काम करते हैं लिखते हैं पहले 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पूछ दिया तो ठीक है नहीं पूछा तो कोई बात नहीं है ओके चलो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में क्या है नेक्स्ट वन में नंबर 3 एंगल ए बी सी एंड लेट्स कम टू नंबर 3। अच्छा नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों तो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दे आर सेइंग दैट द एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक काम करते हैं अपने से पहले एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं बाबू ठीक है ना एक ट्रेपेजियम हम बना ही लिए बाद में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा ओके ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम ठीक है। दे हैव नॉट गिवन दैट विच साइड इज पैरेलल यहाँ पे पैरेलल साइड इज नॉट गिवन हो सकता है ये दोनों भी पैरेलल हो सकता है इजंट इट। दे हैव गिवन यू दैट एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी का जो रेशियो है दैट इज 3:4:5:6 क्लियर ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल्स वैल्यू ऑफ एंगल्स तो बेटा जी वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी 3x 4x 5x एंड 6x मतलब 3x रिप्रेजेंट्स एंगल ए ये वाला हो गया ए दिस इज योर बी and this is your angle C and this is your angle D तो ये 4 एंगल है ठीक है। they are saying they are asking you first to find the angles find the numerical value तो अगर हमारा ये 3x है 4x और 5x and 6x अगर है बेटा जी then in that case you can अच्छा here you cannot say 6x plus 3x is equal to 180 क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि they have not given you that DC and AB are parallel ठीक है they have not given you that they are parallel। तो जब पैरेलल नहीं दिया हुआ है तो एक काम करेंगे ये रूल यूज करेंगे हम किसका क्वाड्रिलैटरल का क्वाड्रिलैटरल का। अब वो क्या था सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री नहीं सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री तो वही बैठा देंगे भैया जी 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री वाई आई हैव ऑलरेडी रिटन सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री क्लियर। तो कम ऑन लेट अस सी 4 5 4 9 9 18 18x will be equal to 360 therefore x will be equal to कितना x will be equal to 360 by 18 मतलब 18 2 times 36 0 value of x is 20 ये x एंगल नहीं है ये this is not an angle it's multiple of 3 multiple of 6 multiple of 5 तो x का वैल्यू 20 यानी कि मुझे कुछ राहत की सांस मिली। वो क्या मिली वी कैन फाइंड द एंगल्स स्ट्रेट वे फ्रॉम हियर कि एंगल ए जो है आपका एंगल ए इक्वल टू 3x का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स सो 3 इंटू एक्स का मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू क्या 4x है 4x का मतलब 4 इंटू एक्स मीन्स 80 डिग्री कोई दिक्कत। एंगल सी का वैल्यू कितना बाबू
5 इंटू 20 100 और एंगल डी का वैल्यू उसी तरह 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम, ऑल्सो नेम द टू साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कह रहा है कि अब बताओ तो कौन कौन पैरेलल है। सो वी अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी 6x का यहाँ पे देखो, यहाँ पे हियर लुक एट हियर, ये 6x कितना था? 6x इज इक्वल टू 6x क्या था? d ना, तो एंगल d इक्वल टू 120, ये वाला हो गया 120 डिग्री। c इज इक्वल टू 100, ये वाला c बिकम्स 100। b इज इक्वल टू 80, b इक्वल टू 80 डिग्री, ये वाला b। और c और a हमारा क्या था? 3x मीन्स 60 डिग्री, और ये वाला हो गया मेरा 60 डिग्री। अब देखो 100 प्लस 80 180, मतलब दे आर को इंटीरियर एंगल। 120 प्लस 60 180, मतलब दे आर को इंटीरियर एंगल। सो वी विल से दैट सिंस एंगल D एंड एंगल C, सिंस एंगल D एंड क्यों करें, प्लस करो ना, यहाँ पे प्लस करते हैं यहाँ पे। सिंस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल D एंड एंगल C आर को इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये को इंटीरियर एंगल हो गया, देयरफॉर जब ये दोनों को इंटीरियर एंगल, तो आप कह सकते हैं कि DC इज parallel to AB. I hope I am able to make you understand this one. मतलब ये पता करने के लिए कि कौन साइड किसका पैरेलल है, मुझे को इंटीरियर एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल निकालना ज़रूरी नहीं है, देयर सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो कोई बात नहीं। नंबर 4 में इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, फिर से एक बार नंबर 4 में, बस 1 मिनट का है ये। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो मैं अभी बताया था कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दी नॉन पैरेलल साइड्स जो है, दिस टू आर दी नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स दे आर इक्वल। तो वही कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में SCELES ट्रेपेजियम ZIU ट्रेपेजियम में वन पेयर क्या है? वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर, और अदर पेयर मीन्स अदर पेयर इज इक्वल, दे आर इक्वल। तो you can write any one pair equal and other pair parallel, you can write anything, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिक्स में, ओके। एक और बहुत बढ़िया चीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में। सो इन नंबर 5 वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग? कर रहा है यहाँ पे कि इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायगोनल इक्वल होता है। अब पूछोगे डायगोनल क्या है? तो ये कोना और ये कोना का जो लेंथ है, द लेंथ, लेट मी नेम दिस एज ABCD। तो BD एंड AC का लेंथ इक्वल होता है। मीन्स इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा कि लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल will be equal. So in an isosceles trapezium the diagonals are of equal length. Clear? ये डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा। तो इन नंबर 5 व्हाट दे हैव गिवन यू, थोड़ा सा मैं फिगर भी बना लेता हूँ, छोटा सा फिगर है। लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑल्सो सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।
ये कह रहा है यहाँ पे हियर टू डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 8 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसका नाम हो ए बी सी डी तो एक डायगोनल हमारा हो गया ये वाला ए सी, जो बोल रहा है कि ए सी का लेंथ है मेरा x सेंटीमीटर और डी बी इज द अदर डायगोनल हुज लेंथ इज 3x माइनस 8। कहाँ है मेरा स्केल? यहाँ पे जो स्केल से ज्वाइन करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हियर दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, दिस इज द अदर लेंथ। दिस हियर AC is equal to DB, और आपकी मर्जी है, और आप ये भी कर सकते हैं DB is equal to AC। ठीक है, तो आई विल राइट DB इक्वल टू AC ओनली, मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। क्यों भाई? देख लो यहाँ पे DB इक्वल टू AC में DB हो गया मेरा 3x माइनस 8 और AC हमारा क्या हो गया बाबू? AC इक्वल टू x। ठीक, सो 3x, ये प्लस x को इस तरफ तो माइनस x, एंड माइनस 8 विल गो दैट साइड, विल बी इक्वल टू प्लस 8, मीन्स 3x माइनस x, 2x इज इक्वल टू 8। तो यार x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। काम खत्म। आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो लो भैया निकाल दिए 4। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC? तो AC को भी 4 होना होगा। वाई? बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, हमने अभी किया 3x माइनस x इक्वल टू 8 इक्वल टू x। सो इफ x इज इक्वल टू 4 तो ये वाला पार्ट भी तो 4 होगा। अगर मन ना माने तो यू पुट द वैल्यू एंड फाइंड इट आउट। देखो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, काम खत्म। ठीक है, तो वही कर रहे हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू थिंक ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब नंबर 6 में देखते हैं। नंबर 6 में एंगल ए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 115, फाइंड एंगल BCD। अच्छा, इस बार तो कमाल ही कर दिया। हियर दे हैव गिवन यू एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लो भैया मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओहो, एंगल A of an isosceles trapezium is 115. So ABCD। ठीक है, ना यू विल आस्क मी कि सर पहले तो A यहाँ लिखते थे, अब A यहाँ क्यों लिख रहे हैं? तो ये कॉमन सेंस की भी एक चीज़ होती है। नहीं, अब एंगल दिया हुआ 115, ठीक है, तो हाउ कैन आई राइट हियर एज 115? ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ ना, तो लगना भी तो चाहिए। वैसे यू कैन राइट इट, वो अलग बात है, कैन वाला बात अलग है कि नहीं, हम लिखेंगे ही तो लिखो, अलग बात है, लेकिन कॉमन सेंस की भी एक चीज़ होती है। एंगल A ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 115। दे आर आस्किंग यू फाइंड एंगल B, फाइंड एंगल C एंड फाइंड एंगल D। क्लियर? तो बेटा जी ये दोनों तो पैरेलल है, तो जब ये दोनों पैरेलल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्या बोला है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बोल दिया है कि हम दे रहे हैं बार बार स्पेलिंग मिस्टेक होता है यार, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ बीन गिवन, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 115 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि वही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यहाँ पे 115 यू कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू 115, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा, आंसर भी मिल गया। ठीक है, ओके, तो 115। खुश? लेट अस फाइंड एंगल D। तो इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल D, सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू 180, कोइंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? तो को
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे सिर्फ समझाने का मतलब है और कुछ नहीं। एंगल ए कितना 115 एंगल डी कितना आई डू नॉट नो इक्वल टू 180 डिग्री। तो यार एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115। सो 180 माइनस 115 कितना हो गया मेरा, ये हो गया 65 हो गया ना, 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी हमने निकाल लिया 65। बोले एंगल सी अब निकालो, तो बोलेंगे एंगल डी और एंगल सी जो है दोनों ट्विन्स है। तो जब दोनों ट्विन्स है, जुड़वा है, तो दे विल बी इक्वल टू द सेम एंगल 65 डिग्री। वही क्यों भाई, तो बोल देंगे ट्विन्स, मतलब आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। सो इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर इक्वल। क्या भाई, बेस एंगल्स आर इक्वल। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7। तो देखते हैं नंबर 7 में कुछ अगर नया ताज़ा अगर मिल जाए तो और अच्छी है। नंबर 7 में बेटा जी क्या कर रहा है, टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 100 डिग्री ईच। तो नंबर 7 में आ गया पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम मतलब ट्रेपेजियम चला गया, अब आ गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटरल, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। और अब वी शैल एक्सक्लूसिवली डील विथ दिस पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम है क्या, क्वेश्चन मार्क इन योर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन go through it.